तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईरानी सरकार ने अपना डिप्लोमैटिक पलटवार पुरजोर तरीके से तेज कर दिया है। जी हां, इस वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी के पक्ष में बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप हुजूम देख सकते हैं जो उनके पक्ष में यहां पर सामने उभर कर आया है। इस बीच बीबीसी यह दावा कर रहा है कि कम से कम 2000 लोग मारे गए हैं। वो लोग जो सड़कों पर उतरे थे महंगाई के खिलाफ, ईरानी मुद्रा का जो गिरता स्तर है उसके खिलाफ, 2000 सत्ता विरोधी लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया है। मगर जैसे मैंने बताया, बड़ी तादाद में लोग उतरे हुए हैं मैदान में ईरानी सरकार के पक्ष में। सबसे पहले अंग्रेजी में सुनिए ये लड़की जेन जी से ये लड़की क्या कह रही है। अमेरिका को चेतावनी दे रही है कि सोचना भी मत हमला करने को, और वो आगे ये भी कहती हैं कि सुप्रीम लीडर के लिए वो अपनी जान कुर्बान भी कर सकती हैं। सुनिए वो क्या कह रही हैं। And we will stand tall for our leader. And this isn't something to be taken lightly, because this crowd here are willing to just give their life for our leader. And you should be afraid of what is coming for you. We are all coming for you. As a member of Gen Z, what's your message to the youth here in Iran? The only thing that I can say is that I wish for you a healthy and happy life that we all deserve, and I wish peace. But I am willing to fight in this side against American government and Israel for sure. The things that are happening here, people are aware, people know. अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, एक महिला रिपोर्टर भीड़ के हुजूम के बीच में वो मौजूद है और वहां से वो रिपोर्टिंग कर रही है, बता रही है कि इस वक्त वहां क्या मंजर है, क्या हालात हैं। आप खुद देखिए कि वो क्या रिपोर्टिंग कर रही है, देखा जाए। Well, as you can see right behind me, once again Iranian people have gathered in their masses to once again voice their support for their government, for their Islamic government, and to once again reaffirm their pledge of allegiance to the principles of the Islamic Revolution. And of course, due to the recent developments inside the country, they're here to condemn, to voice their condemnation to the recent foreign-backed riots and foreign-backed terror activities that has led to the death of innocent people inside the country. And well, as you can see right behind me, well, we are here in Enqilab Square, in one of the main squares of the capital, Tehran, where Iranians from all walks of life, with their families, all together, young and old, men, women, children, even teenagers are here to say that they do not tolerate any foreign intervention in the country's domestic affairs, and of course they will not tolerate any further terror attacks on the innocent people of the country. अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं ईरानी सरकारी प्रेस टीवी में एक औरत जिसने ब्लैक गॉगल्स पहने हुए हैं, वो भी कह रही है कि हम खामेनी के लिए अपनी जान दे सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं पश्चिम को चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे वक्त दोस्तों जहां जबरदस्त दुष्प्रचार सामने उभर कर आ रहा है, और इंतजार कीजिएगा वो दुष्प्रचार जिसका प्रायोजक इस्राइल है, अब वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। मगर सुनिए ब्लैक गॉगल्स पहने ये औरत क्या कह रही है कि सुप्रीम लीडर के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। सुना जाए। وظیفه خودم میدونستم چون ما برای رهبرمون جون میدیم، خون میدیم و میخواستم بگم که ایران ونزوئلا نیست. ما یه رهبر خیلی بزرگی داریم که همه جوره پاش پای میستیم.
فقط باید میگم که خیلی ضعیفن و واقعا راه به جایی نمیبرن با این کاراشون و نخواهم برد و نبردن. نظر من در مورد اغتشاشات اخیر این هستش که از روی ضعف بوده، هیچ راه به هیچ جایی نبردن و اینکه واقعا متاسفم، واقعا کسی که معتصب باشه و ارق وطنی داشته باشه هیچ وقت نمیاد تو خیابونا ماشین آتیش بزنه و خیلی کارهای دیگه کنه و واقعا یه انسانی که وطن پرست باشه هیچ وقت به کشورش خیانت نمیکنه. और आप देख रहे हैं ईरान अपनी तरफ से जो बातें दुनिया तक पहुंचा रहा है उसमें औरतें एक अहम किरदार निभा रही हैं। जी हां, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एक 3 साल की लड़की की हत्या सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कर दी थी और उसे एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया ईरानी शासन ने। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि औरतें किस बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतार रही हैं और खामेनी के पक्ष में अपना बयान दे रही हैं। सुनिए एक और औरत को। برای پشتیبانی از رهبرمون، آرمانهامون و تک تک شهدامون. از رهبر انقلاب صحبت کردید، پیامی دارید بهشون بدید، خطاب بهشون؟ بله، رهبرم بدونه که جون ما عزیزتر از اون شهدایی که برای دفاع مقدس جنگ 12 روزه دادن کمتر از جون اونا نیست و جونمون و نفسمون رو تو این راه میدیم برای حفظ آرمانها و رهبرمون. دشمن میخواد ایران رو تبدیل به ونزوئلا و لیبی کنه. به نظر شما این اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ چرا؟ اینا حتی تو خوابشون هم نمیتونن چنین موضوعی رو ببینن. اتفاق نمیفته چون تک تک ما سربازای خامنه ای هستیم. इस बीच इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईरानी सरकार ने पश्चिमी देशों के राजदूत को बुलाया था और वो वीडियोस दिखाए थे जिसमें प्रदर्शनकारी जो हैं वो मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, लोगों के सिर काट रहे हैं। ये तमाम वीडियोस जो हैं वो वेस्टर्न नेशंस के राजदूत को दिखाया गया था। इनफैक्ट अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग एक वीडियो दिखा रहा है दोस्तों, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हर घंटे नए नए वीडियोस आ रहे हैं और इन वीडियोस में मस्जिदों में तबाही मचाई जा रही है, मस्जिदों को आग लगाई जा रही है। सबसे शॉकिंग, कुरान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह वीडियो विचलित करने वाला है दोस्तों, मगर मैं चाहूंगा आप देखें जो बात ईरान दुनिया के सामने रखना चाहता है। देखा जाए। द हेग में ईरानियन एम्बेसी ने 4 वीडियोस पेश किए हैं, मगर उन 4 वीडियोस में मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं जिसमें एक रिपोर्टर हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है और आप पीछे का नजारा देखेंगे, सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखाई देता है। दोस्तों, ईरान में जो भी हो रहा है ना, इस वक्त जहां तक प्रोपेगेंडा वॉर का सवाल है, यहां पर ईरान जीतता हुआ नजर आ रहा है, भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब पश्चिमी देश भी मजबूर हो गए हैं ये तस्वीरें दिखाने के लिए। CNN, BBC बेशक ये तस्वीरें ना दिखाएं, मगर हकीकत यह है कि ये तमाम वीडियोस सोशल मीडिया के जरिए लोगों के फोन्स तक पहुंच रहे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर से की गई यह रिपोर्टिंग। مردم عزیز ایران، من از فراز آسمان تهران امروز دوشنبه 22 دی ماه 1404 ساعت 15:10 برای شما گزارش میکنم. این تصویر حضور مردم تهران است، نمادی از اتحاد مقدس ایرانی ها مقابل سرکردگان تروریست های وحشی مسلح یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی. امروز مردم تهران در کنار همه مردم इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर एक कॉन्ट्रडिक्शन उनके बयानों में महसूस किया जा सकता है। एक तरफ उनका यह बयान दोस्तों, जिसमें वो प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहे हैं कि तुम बिल्डिंग्स पर कब्जा करो, अमेरिका आ रहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप यहां इशारा कर रहे हैं कि वो जल्द ईरान में दखल देने वाले हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं उन्होंने क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर। ईरानियन पेट्रियट्स keep protesting, take over your institutions, save the names of the killers and abusers. They will pay a big price. I have cancelled all meetings with Iranian officials until the senseless killings of protesters stop. Help is on its way. Make Iran great again. President Donald J. Trump. यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये अपील कर रहे हैं
मगर दूसरी तरफ वो ये भी बयान दे रहे हैं कि अभी यह पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ईरानी शासन अपनी जनता पर जुल्म कर रहा है या नहीं। सही सुना आपने। एक तरफ वो प्रदर्शनकारियों से कहते हैं कि बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लो, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अभी कोई पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ईरान की सड़कों पर जुल्म हुआ है जिसकी बात की जा रही है। सुनिए, इससे पता चलता है कि इस शख्स का मानसिक संतुलन किस तरह से बिगड़ा हुआ है। सुना जाए। Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed. इस बीच खबर ये आ रही है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की जो एक बैठक होने वाली है, उसमें से दक्षिण अफ्रीका ने ईरान को बाहर का रास्ता दिखला दिया। सही सुना आपने। ईरान से दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि अमेरिका का हम पर जबरदस्त दबाव है। यह खबर आपकी स्क्रीन पर, जिसमें दावा किया जा रहा है दोस्तों कि ईरान को बाहर का रास्ता दिखला दिया गया है। अब बड़ा प्रश्न, ब्रिक्स की अगली बैठक जो है वो भारत में होने वाली है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर ईरान को बाहर का रास्ता दिखलाएंगे जैसा दक्षिण अफ्रीका ने किया है, या फिर स्वयंभू विश्वगुरु यह प्रमाण देंगे कि वह अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है? यह सवाल अपने आप में बहुत वाजिब हो जाता है। साफ तौर पर दक्षिण अफ्रीका पर अमेरिका का दबाव जो है वो काम आया, रंग ला रहा है। मगर क्या भारत भी उसी नक्शे कदम पर चलेगा या फिर अमेरिका को लाल आंख दिखाएगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है, ये जो लाल आंख दिखाने का सिलसिला है ये तभी होता है जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है। चीन को लाल आंख दिखाओ, अमेरिका को लाल आंख दिखाओ, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाओ, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं दोस्तों, ईरान में जो चल रहा है ना वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा वॉर भी है। यानी कि एक तरफ से कुछ प्रचार किया जा रहा है और दूसरी तरफ से कुछ और। अब मैं आपके सामने बीबीसी की एक खबर रखता हूं। बीबीसी अपनी इस खबर में दावा कर रहा है ईरान में हजारों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की आशंका। ट्रंप बोले विरोध जारी रखें, मदद रास्ते में है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बीबीसी कह क्या रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुए कार्रवाई में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से कहा है कि मदद रास्ते में है। मंगलवार को कई दिनों बाद विदेश में रह रहे अपने परिवार वालों से पहली बार फोन पर बात करते हुए ईरानी लोगों ने भयावह मौत और तबाही का ब्यौरा दिया। बीबीसी फारसी के संवाददाता जियार गोल का कहना है, पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मारे गए लोगों की संख्या हजारों में होनी चाहिए। उन्होंने कहा सरकार पहले भी ताकत का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन इस बार जो हुआ वो बिल्कुल अलग है। रॉयटर्स ने एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि मरने वालों की संख्या करीब 2000 हो सकती है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जेनेवा में एक सम्मेलन में कहा, रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों को गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस ने कहा यह आकलन संयुक्त राष्ट्र के सोर्स पर आधारित है और यह भरोसेमंद सोर्स है। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों, इस प्रदर्शन में कई लोग मारे गए हैं और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां भी लगातार अपील कर रहे हैं उन युवाओं से जो सड़कों पर हैं। उनसे कह रहे हैं कि आइए बातचीत करिए हमसे। यानी कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इन प्रदर्शनों के पीछे कहीं ना कहीं इस्राइल और मोसाद का हाथ भी है। यानी कम से कम समर्थन तो मिल ही रहा है। अब मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। इस खबर को देखिए दोस्तों, यह है ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश जो है वो यह दावा करता है कि करीब 12,000 लोग मारे गए हैं। 12,000 लोग, यह खबर कह रही है 12,000 लोग मारे गए हैं। मगर क्या आप जानते हैं यह जो ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसे चलाता है वो शख्स जो सऊदी अरब का रहने वाला है, जो लंदन में आधारित है और सबसे बड़ी बात जिसके सीधे ताल्लुकात हैं इस्राइल के साथ। जी हां, मैं आपको बतलाना चाहता हूं जाने माने शिक्षाविद डेविड मिलर इस बारे में क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ये दावा कर रहा है 12,000 लोग मारे गए।
अब यह आंकड़ा कहां से आए कोई नहीं जानता है। बीबीसी भी दावा कर रहा है कि हजारों लोग मारे गए, कम से कम 2000 लोगों की मौत की बात की जा रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, लोग मारे गए हैं, मगर आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना यह गलत है। सबसे पहले डेविड मिलर क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। ईरान इंटरनेशनल एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क है जिसे सऊदी अरब ने 2017 में लंदन में बनाया था। इसका रुख पूरी तरह ईरान विरोधी है। जब तक 12,000 मौतों का आंकड़ा स्वतंत्र रूप से पुष्टि ना हो जाए, इसे नजरअंदाज करना चाहिए। ईरान इंटरनेशनल चलाने वाली कंपनी वोलांट मीडिया लिमिटेड का मालिक एक सऊदी नागरिक है जिसका नाम है आदेल अल अब्दुल करीम। अल अब्दुल करीम का सऊदी मीडिया और अखबारों से जुड़े लोगों और कंपनियों के साथ लंबे समय से सहयोग का रिकॉर्ड रहा है। ईरान इंटरनेशनल के एक स्टाफ मेंबर ने खुलासा किया कि इस नेटवर्क की खबरें कुछ गुमनाम निवेशकों के प्रभाव में होती हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक 2018 में सऊदी अरब ने ईरान इंटरनेशनल को $250 मिलियन की फंडिंग दी थी। ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट ने बताया कि ईरान इंटरनेशनल के निवेशक सऊदी नागरिक हैं। वहीं अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि सऊदी अरब में मौजूद लोगों ने ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को टक्कर देने के लिए ईरान इंटरनेशनल की स्थापना की और उससे फंड किया। यानी कि ईरान इंटरनेशनल के पीछे पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो ताकतें हैं जो ईरान शासन की विरोधी हैं। मैं एक बात फिर स्पष्ट कर दूं, ईरान के अंदर जो ज्यादतियां हो रही हैं और जो हुई हैं उसे रिपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है। सरकार अक्सर अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए विदेशी साजिश की बात करती है, मगर यहां बाकायदा सबूत सामने उभर कर आ रहे हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में यह वीडियो दिखाया जिसमें एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सीधा सा सवाल, जो व्यक्ति महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहा है वो मस्जिद को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? वो कुरान को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? वो कुरान जो कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर इस मंच पर बगैर किसी इंफ्लुएंस के मैं आपके सामने तमाम तथ्य लाता हूं और मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरे तथ्यों से कौन असहज होता है, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं आपके सामने पेश करता हूं उसकी जमीन भी मैं आपके सामने रखता हूं। यह मेरा वादा है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।